Okay, guys. So let's start the GD, and so I'm going to start with the intro. So there are five basic things we have to include in your intro part while you're starting your GD, while you're starting your group discussion, basically. In your introduction, if you're starting with your introductory part of group discussion, so you have to start first with your greetings. Number second is your name and name of the topic as well. All right. Number three is your meaning, definition, or any generic view about your topic. If you don't know any meaning, if you don't know, what is a term defined or like that, so you can give a generic view. All right. Fourth one is what do you think? What is your opinion on the topic? Like what you believe, whatever you want to say. So you may start with that. And fifth is very important that open the house for discussion. Okay. So just I'm going to represent an intro towards you. Good evening, everyone. My name is Shikha, and the topic of discussion today is women empowerment and gender justice, addressing the equality issues or challenges. All right. And that what is women empowerment basically? Women empowerment is basically to increasing the that strength of a woman socially, legally, politically, in every manner basically. To create a lot of opportunity for women that she can live her life or live her rights properly basically. All right. Now we have two dimensions here: women empowerment, even three dimensions here: women empowerment, gender justice, and challenges in equality. All right. So, women empowerment, we have understood that women empowerment is basically when we create opportunity for the women, specifically when women have its opportunity to live liberty, live in a freedom properly, right? And second is gender justice. Now, there's a difference between gender and sex. All right. Why it is gender justice only? Why it's not a sex justice like that? Have you heard about this term before? Like, have you think over it before? See, gender is basically a man-made term, right? It's a human-made term basically, which society had made. जेंडर जस्टिस बेसिकली होता है कि जो हमने एक स्टेरियोटाइप्स बनाए हुए हैं कि हाँ ये औरत है या फिर ये आदमी है लाइक दैट, कि इसको घर में ही रहना चाहिए, ठीक है, और आदमी है तो उसको बाहर ही जाना चाहिए, उसको काम ही करना चाहिए. दैट इज बेसिकली अ जेंडर. सेक्स इज ओनली फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक दैट. वो हमारे दैट इज ह्यूमन बॉडी, वो दूसरा पार्ट होता है, राइट. बट जेंडर जस्टिस जो है वो एक सोशोलॉजिकल टर्म है बेसिकली, जो हमने क्रिएट करी है. दैट्स व्हाई इट्स अ जेंडर जस्टिस. All right. And third domain is the challenges. So क्या challenges हैं हमारे, right? So we can say like that women empowerment is, we can give a definition of women empowerment. Then we can address the one challenges or like that. Even we can address, like, now I'm going to now we are going to discuss some challenges, some problems of what women empowerment faces these days. All right. And your fourth point, that is your opinion. I believe that women empowerment is very much important, as in today's 21st century, still women is facing a lot of problem in, like, you can say in the financially, and you can say economically, it's one on the same thing. Economically, you can say it's economic is a better term to be used. Sociological, you can say it's education inequality she's facing right now. So you can state like say like that. Fifth is open the house for the discussion. So you can say like that. Now I invite you all to participate in the discussion. All right. That I like, let's start, let's discuss the topic. Let's about, that's in that particular term, you can, start a discussion. Okay. So again, I'm just repeating the points. Number one is your greetings. Number two is your name and the name of the topic. Number three is your meaning, definition, or any gender point of view, for the topic. Number four is your point of view. What you are thinking, what do you start with? Okay. And fifth is open the house for discussion. All right. So women empowerment क्या होती है, क्या ये हमें सबको समझ आ गया कि हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? मेक योर चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लियर. बहुत ज्यादा मेमोराइज या कोई फैंसी वर्ड्स ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए. ऑल राइट. So now who is going to be start with the intro, body, and conclusion? So please give your names so that we can start with that. Ma'am, topic is going to be this women empowerment. Yes, exactly. Okay. Yeah. Ma'am, I would like to introduce. Okay. Sahil is for intro, right? Sure. Okay.
Who is going to start with the body? Like, who is going to give the content? Yes, ma'am. Kuldeep. Yes, ma'am. All right. And who is going to be conclude? Excuse me. Yes, guys, please start, Sahil. Yeah, ma'am. Good evening, everyone. I am Sahil Fadnavis. Today, we have been given a topic that is women's empowerment. So, I believe that this topic is of very great relevance, and I believe that women are a very crucial part of the society. They are into almost every sector now. Earlier, what used to happen? People were not giving the opportunity to women because there were some stereotypes in the minds of the Indian people. So I believe that this discussion should go in the following categories. First, we should discuss where India is lacking in women's empowerment. Secondly, the we should see various example that where women have been in current position, and we must discuss one more point that what should we do to promote women's empowerment, and lastly what awareness strategies we should create so that women get opportunity in every field, be it from sports to all sector. Currently, we in women are in Olympics medal. We have seen that the Manu Bhakar, who has won 2 bronze medals, and there are a lot of examples. So I believe that we should discuss about this topic in the following this category that I have suggested. So I open the house for the discussion. ओके, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि वुमन के एम्पावरमेंट से स्पेशली वुमन पे और आसपास की सोसाइटी पे और फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वुमेन एक चाइल्ड के फर्स्ट मदर जो होती है, चाइल्ड का फर्स्ट टीचर होता है। तो अगर वुमेन एजुकेटेड रहेगी और अच्छे रहेगी तो ओवरऑल नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक गुड स्टार्ट मिलेगा एजुकेशन का। तो मुझे लगता है वुमन का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है इसलिए भी। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें वुमन के एम्पावर्ड होने से कि हमारे जो सोशल क्राइम्स हैं उसमें रिडक्शन आएगा, क्योंकि वुमन एम्पावर्ड रहेगी तो अपने हक के लिए किसी की गलत या बातों में ऐसे जाएगी नहीं, और अपने मतलब अच्छे और बुरे का डिसीजन खुद ले सकती है। तो किसी के बहकावे में नहीं आके वो अच्छा डिसीजन ले सकती है और सोशल क्राइम में रिडक्शन आएगा उसकी वजह से। Yes, मैं Kuldeep, आपसे I agree with मैं you. आप And as you added that women should be educated. And I would also like to add the challenge that we are facing in that. For example, some section of society are very rigid regarding the social status of women. For example, if you see in the rural areas, women are not allowed to study and all those things that they can do in the urban areas. So I think that would be a challenge in empowering women and addressing the gender justice. Yes, I totally agree to what you are saying, but I also like to add I'd like to tell you about what are basically issues that why we have to raise this issue of women empowerment. Like we always find a gender gap in the uh, employment sector also, where the women are paid sometimes less than the men's, and also there are various cultural reforms, the old reforms which do not allow women to basically move out of the house to stay in the house. So I think these have raised an issue to basically push the women to enter into the system.
I think this can also be done as Sahil has said that if we are encouraging women to be in sports or in any kind of industry, then they can excel um, in that industry. यस फ्रेंड, I would मैं also like to सहमत add हूँ one क्योंकि point that there is a reservation for women's in almost every field now, but I believe that they should get more opportunities so that they could create an impact in the society, because if we will not promote them, they will be not able to get these opportunities. So I think reservation should be little bit increased. यस Yes, फ्रेंड्स, मैं the सहमत हूँ। मैं reservation इसमें and और the एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी अगर कि एम्पावरमेंट अगर कि महिलाओं को या स्त्री को मिलता है, तो अगर कहीं क्राइम होता है तो वो माने कि महिला को फीलिंग को समझेगी और उसमें जस्टिस में योगदान देगी, जिससे कि जस्टिस माने फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होगा अपने देश में। और ये जरूरी है कि माने हर सेक्टर्स में औरत को अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही साथ मैं yes, एक पॉइंट और very ऐड well true. करना चाहूंगा। यस, I think basically if the government एक्चुअली the जो what आपका the बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है वुमेन इन्वॉल्वमेंट। हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि सारी जितनी भी औरत लोग हैं, जितने भी वुमेन लोग हैं, लेडीज लोग हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट बनती है, राइट। लेकिन ना, जो वाइफ हस्बैंड होते हैं, तो हर कोई जो वाइफ होती है वो अपने घर भी सारा काम करती है, करेक्ट, और बच्ची को भी देखती है, और हस्बैंड के लिए टिफिन देखती है। और आजकल हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि सारी जितनी भी लड़की लोग हैं वो लोग भी जॉब कर रही है, करेक्ट। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि जितनी भी लड़की लोग जो घर में भी काम करती है और बाहर भी जॉब करती है, तो हर लड़कों को, या फिर चाहे उसकी बहन हो या फिर उसके हस्बैंड हो, तो उनको भी हाथ बांटना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके बच्चे को भी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ, हमें अपनी माँ की भी मदद करनी चाहिए। इनसे उनका माइंड डेवलप होगा उसके Yeah, साथ right. सभी हाँ, मैं लोग इससे सहमत हूँ uh, क्योंकि अगर हाथ एक बटाएंगे तो इससे हेल्प मिलेगा जो लेडीज है और जो चाइल्ड को केयर करते हैं, उससे हाथ बटाने से उसको हेल्प मिलेगा और उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं चली भी जाती है तो लड़कों का देखभाल करने में उस माने साथ उसके हस्बैंड को Yeah, हेल्प मिलेगा। rightly said by the Komali that this is where India is lacking currently, because there is a problem in the mentality of the people. Old people thinks that women cannot do, they are not able to do outside jobs. They are made for only the doing the homework, work of the house. This is, we should first think about this, that there is a mentality problem in Indian society. So we have to Yes, create awareness for, to tell एग्जैक्टली that we should मुझे tell them that मुझे ऐसा लगता है there are कि very good opportunities for women outside. They can do well outside also. So yeah, yes, if I agree with you, and I would मुझे also like to add one of the problem that hurdle for the women empowerment is that the transportation and the movement of the women. Because if you see, there is a concern regarding the security of women when they are moving from one place to another place. For example, recently I saw in the train that women, when they were traveling alone in the railway trains, after when the journey was over, a police woman came and asked them whether they faced any challenge or not. So basically, there is a hurdle, the transportation hurdle that the women face due to security issues. So that is यस यस। also a hurdle, a challenge that is in occurring. साथ ही हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर वुमन एम्पावर्ड होगी तो वो इनडायरेक्टली फैमिली के लिए भी अच्छा है, सोशल समाज के लिए भी अच्छा है। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं सोशल क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि मान लो अगर वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो हस्बैंड ऑफिस गया, कोई एक फोन आता है ऑनलाइन कि आपके हस्बैंड या कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ गए, आपका एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए या वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए, जो भी है। अगर वुमन एम्पावर्ड नहीं रहेगी तो वो क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई प्राइवेट कुछ भी है तो डाटा लीक कर देगी, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि उसका पूरा अकाउंट साफ हो जाए या घर की कोई प्राइवेसी जैसे चीजें लीक हो जाएं। तो ये चीजें भी है कि इन अब्सेंट ऑफ हस्बैंड तो अगर वुमन इम्पोर्ट रहेगी तो ओवरऑल वो घर को सेफ रखेगी, तो इसलिए भी जरूरी है। मैं इसमें ऐसा और लगता है कि एक पॉइंट मुझे ऐड ऐसा करना लगता है चाहता कि हूँ कि वुमेन अगर कोई एम्पावरमेंट औरत बेसिकली दो वुमन अगर वुमेन एम्पावरमेंट रहेगी तो इसमें अगर कोई वो जॉब कर रही है तो घर के लिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट दो वजह से हो सकता है। अगर लीगल रिफॉर्म्स प्रॉपरली मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रॉपर हो,
और कम्युनिटी सपोर्ट मिले, मतलब जैसे फैमिली का सपोर्ट मिले, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिले, और लीगल रिफॉर्म थोड़े से स्ट्रिक्ट हो इस केस में, तो जो सेफ्टी कंसर्न है रिलेटेड टू वुमेन इन द मेट्रोज, द ट्रेन्स, वो थोड़ा सा इंक्रीज होएगा। और साथ ही साथ अगर इस चीज को बेसिकली हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर और ज्यादा स्प्रेड करें, ये अवेयरनेस जो है और ज्यादा स्प्रेड करें, तो लोगों में एक जागरूकता आएगी इस चीज को लेकर, और जो मेंटेलिटी है, जो बैड मेंटेलिटी है लोगों की, वो रिड्यूस होगी। डेफिनेटली One more एजुकेशन इज द solution that मोर I would like to I add agree here with you, is that and women are not promoted for higher studies. I am from an engineering college. There are very less gender male to female ratio in the college. So I have seen that there is a very poor condition in Indian society that women are not getting the higher opportunity for higher education. So I believe that government should provide some scholarships to the women which are from the very poor conditions and they are not able to afford the scholarship fees of that college. So if we promote this in, then women will be empowered. आई थिंक yes, गवर्नमेंट I'll प्रोवाइड agree कर with रही है you. पर There are yes, यस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बट उसके लिए सबसे पहले घर वालों का एजुकेट होना, उस चीज को समझना कि वुमेन्स को अब उस नजरिए से नहीं देखा जाए जो बहुत पहले देखा जाता था। अब उसको इक्वली राइट है हर चीज का, वो हर फील्ड में आगे कर सकती है। जैसे कि क्रिकेट में खेलने का मौका देख मिला उन लोगों को, तो हम लोग देख रहे हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट कितना आगे तक गई है। तो उसको अपॉर्चुनिटी, तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनको समझ के अब वो ओल्ड मेंटेलिटी ना रख के अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए, इस चीज को प्रमोट करते हुए, इवन अपने सिस्टर को या जो भी है अपने एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट का तो है yes, फैक्टर, हम Kuldeep, लोगों का भी है। यस यस। yes, Kuldeep, I agree with you. And one more thing that if you see how the status of women has evolved over past in India, initially, if you heard that there was problem of infanticide of women, the actually मतलब भ्रूण हत्या जिसको हिंदी में कहते हैं, that was a very big problem. Though it has reduced now, but it still happens. For that, government has taken some initiatives such as Beti Padhao, Beti Bachao, and there is a scheme by government when if the mother is giving a birth to the girl child, she is giving some funds from the government end to raise the girl child. So I think यस, government उसको is बढ़ाना doing a चाहिए lot फंड्स को। for the government. Yeah, one more point I would like to add. There is a safety issues for the women in the workplace. If they are working, they might face some problems due to some unknown problems. So I believe that the laws should be strict. यस यस। India government should take a very strict action against these crimes. Uh, if if the laws are stricter, then nobody will try to commit such bad things. So I think that एग्जैक्टली, is लॉ स्ट्रिक्ट होना I चाहिए। would I would like to extend what Kuldeep has said. जैसे इंडियन स्पोर्ट टीम की बात करें तो मेन स्पोर्ट टीम को जैसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अगर हम देखें स्टेडियम्स भी फुल रहते हैं उनके जब मैचेस होते हैं, बट वहीं पे वुमेन क्रिकेट टीम एग्जिस्ट तो करती है, बट जो पॉपुलैरिटी है और जो ऑडियंस ग्रैब है वो उतना नहीं मिल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है या इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो या तो हमारी मेंटेलिटी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो स्प्रेड है इस चीज का, जो मीडिया जो रोल प्ले करती है इसमें। जैसे आईपीएल के उसमें बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है, बट जब वुमेन्स वर्ल्ड कप बात करते हैं तो वहां पे पता नहीं लगता कौन सा मैच कब हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग को पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन टीम जीत रही है कौन हार रही है। वहीं अगर मेंस वर्ल्ड कप होगा तो हम हमारे जो जैसे हॉटस्टार है या जियो सिनेमा, इनकी जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि जो गरीब लड़की लोग जो होती है ना, मतलब जो लोग गांव में रहती है, और आजकल तो हम लोग सभी लोग देख पा रहे हैं कि सभी लोगों के पास मोबाइल है। ओके, तो लेकिन ऐसा होता है कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता है, और डेफिनेटली नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो लड़की लोग मतलब दूर दूर कोचिंग तो जा नहीं सकती है, तो उसके लिए हर गांव में मतलब लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब लड़कियों को एजुकेट, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि लड़की को पढ़ाया नहीं जा रहा है अच्छे से, बोला अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो और कर शादी किए जा रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए मतलब शिक्षा के लिए वो फाइट कैसे करे, के अंदर हिम्मत आनी चाहिए, राइट। तो हर गांव में एटलीस्ट हम लोग को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हर गांव में एक एटलीस्ट एक लाइब्रेरी होना चाहिए, और खासकर लड़कियों के लिए स्पेशल अलग से, इसलिए क्योंकि आजकल ना मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कब कहाँ रेप हो जाए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी,
गवर्नमेंट को इतना अलग से गाड़ी प्रोवाइड करना चाहिए सीसीटीवी कैमरे से, और अगर पुलिस पे रहेगा तो और भी ज्यादा बेटर है। यस यस। और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सोशल क्राइम कम हो जाएंगे। उसका एक और भी रीजन मैं देखता हूँ कि गांव में क्या होता है, वुमेन डिपेंडेंट रहती है अपने हस्बैंड पे। तो जब डिपेंडेंसी रहती है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उसको बातों को मानना पड़ता है, वो जैसा जो भी कहेगा। तो एक है कि अगर वुमन इम्पोर्ट रहेगी तो अपने अकॉर्डिंग वो मतलब घूमना फिरना शॉपिंग करना, एक इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से घर में समाज में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी और रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाएगा। साथ ही साथ वो कोई बात बोलेगी तो उसकी भी रेस्पेक्ट करी जाएगी। तो इसलिए भी जरूरी है। इसमें मैं एक Yes, और Kuldip, पॉइंट I ऐड agree करना with you, चाहता and I हूँ would also like to कि add one more dimension to it. That is, there is a negative consequences of women empowerment also. That is also should be addressed. That some women take advantage of the laws made by government to harass their opposite gender. For example, sometime मतलब कभी-कभी false cases और क्लेम कर दिए जाते हैं पुलिस के पास जाकर। और मी टू का भी हमने देखा कि कैसे फॉल्स केसेस किसी पर्टिकुलर पर्सन पर लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ख्याल से ये भी एक चैलेंज है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए इक्वालिटी पे। एग्जैक्टली। मैं इसमें एक एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जैसे गांव में है कि क्या होता है कि पढ़ने के लिए लड़कियों को लोग गांव से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, उनको डर रहता है कि कुछ हो जाए, लड़कियों को दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो इनसे जागरूकता, गांव के लोगों को खास तौर से जागरूकता, मैंने जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे कि जागरूकता बढ़े कि लड़कियां भी वो सब कर सकती है, कुछ मैंने अपने हाथ में पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है और उस देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। Yeah, I agree that as Arvind said that awareness should be increased. So how should we increase awareness? So we should conduct lots of awareness program. Uh, Indian government is doing that, but as a society, we should also create awareness in the society. That we should tell them how women are doing great outside the world. For example, I have given in the introduction part that one example of Manu Bhakar. She has won medals, 2 medals. Then Vinisha Phogat, recently she has won in in wrestling. So I think that women should get opportunity, and then only with they will be they will have social upliftment, and they will be feel strengthened, and they will feel that they are being heard in the society. So yeah. मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि अभी का हम लोग सब देख पा रहे हैं, किसी लड़की के साथ जब रेप होता है ना, तो जब उस चीज के लिए फाइट कर रही थी, इनकी अपना कंप्लेन लिखती है, तो जल्दी पुलिस मानती नहीं। तो इस चीज के लिए हम लोग को ऐसा क्या फाइट करना चाहिए कि गवर्नमेंट इसके लिए एकदम स्ट्रिक्टली रूल बनाए। ऐसा पुलिस पे क्या है कि जो वो रेप का कंप्लेन लिखती है तो पुलिस कहती है तो होता रहता है। तो क्या लड़की के लिए जिंदगी नहीं है? क्या ये लड़की के लिए जिंदगी के लिए तो फाइट करनी है? आप लोग को भी कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि कैसे बचाया जाए? पुलिस होने के बाद भी मदद नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए आप लोग क्या पॉइंट बताना चाहेंगे, इसके लिए क्या मदद करना चाहिए? प्लीज एनीवन। मुझे लगता है ये सिक्योरिटी से ये हम पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ एज अ पब्लिक हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी लड़की को हेल्प चाहिए तो हमें करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें हमसे पूछताछ होगी, हमें स्टेशन पे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, हमसे बात करें। बिल्कुल हमें अगर एज ए एजुकेटेड पब्लिक हैं तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारी भी एज ए नेशन भी और एज ए ब्रदर होने के नाते हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई लड़की के साथ क्राइम हो रहा है तो बिल्कुल उसके साथ स्टैंड करना चाहिए, जिससे कि हम Okay, क्राइम को रोक सकते guys, हैं। please conclude the topic. So on concluding this topic, I would just like to say that इंडिया में हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखा है वुमेन्स का। वुमेन्स हमेशा से एक पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में रही हैं। आजकल वुमेन्स हम लोग एंटरप्रेन्योर भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन को सपोर्ट तो मिल रहा है, पॉलिसीज का सपोर्ट मिल रहा है, बट वो एक जो जैसे मुंबई बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में उनको सपोर्ट मिल रहा है, बट जो स्मॉल सिटीज हैं वहां पे अभी इतनी अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सारे इश्यूज जो हमने अभी डिस्कस करे, जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई, देन कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, तो ये सारे इश्यूज वहां पे लैग कर रहे हैं। तो वहां पे अवेयरनेस फैलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
All right then, or something, someone is like to add something. मैम मैं कंक्लूड कर सकता हूँ? Yes, please. ओके, आई टेक अपॉर्चुनिटी फॉर कंक्लूजन। ओवरऑल हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया कि हमें कैसे वुमन को इम्पोर्ट करने के हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड रहेगी, हमारा घर और समाज सिक्योर रहेगा। साथ ही साथ हमें वुमेन सिक्योरिटी के लिए करना क्या चाहिए कि हमें लॉ ऑर्डर का स्ट्रिक्ट करना चाहिए। एजुकेशन, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ जो गर्ल चाइल्ड को भी प्रमोट करना चाहिए, चाहे इन फंड्स देके या कुछ भी करके। साथ ही साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि एज अ नेशन, एज अ ब्रदर, हम लोग अपने मतलब सिस्टर्स को या जो भी है वुमेन्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। All right. Okay, guys. So we had a good discussion, I would say. You all have, make your contribution towards these ideas, towards this particular topic, women empowerment. Okay, so I would like to start with Sahil first. Sahil, are you there? Yeah, ma'am. Okay, Sahil. So you have taken the initiate to start the topic, all right? Yeah, ma'am. You have started well. ऑल राइट, ठीक है, आपने एग्जाम्पल अच्छे दिए कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, बट स्टिल Yeah, हमें उनको थोड़ा एनहांस करना चाहिए। दैट्स गुड पॉइंट। yeah. काफी अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया। आपने एक चीज बोली कि वो वर्क प्लेस पे जो है एक अननोन प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अननोन प्रॉब्लम ग्रुप को कैसे पता लगेगा, या फिर जो लोग सुन रहे हैं उनको कैसे पता लगेगा किस टाइप की, क्योंकि अननोन प्रॉब्लम में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, right? Yeah. So you can say like that, they can be, misbehavior or like that, Yeah, any misbehaving. mishappening at the, workplace, which Yeah, I might not forgot be that one. entertained like that. Okay. So there should be some rules or there should be some laws, regarding that. So आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। Yeah, ऐसा ma'am. अननोन प्रॉब्लम तो कोई चॉइस ऑफ वर्ड नहीं है ना, हमें नहीं पता Yeah, ma'am. लगेगा I कि अननोन didn't प्रॉब्लम क्या got होता है, that one at that time. ऑलराइट, फाइन। I will सो make sure. बाकी सब ठीक था, बट एक थोड़ा पॉइंटर्स को, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को थोड़ा क्लियर करो जब आपने आइडियाज Sure, दे रहे हो। तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, कि डिस्कशन करनी है तो करनी है, हमें अपने पॉइंट को प्रूव भी तो करना है ना, कि जो हम बोल रहे हैं उसका लॉजिक क्या है बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है। Yeah, सो ma'am. यू नीड टू टेक केयर ऑफ, अदरवाइज यू हैव पार्टिसिपेटेड वेल, अच्छे पॉइंट्स थे, आइडियाज ठीक थे, बट थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड को ध्यान रखना है, आगे से कोई भी ऐसी टर्म नहीं बोलनी कि जो ऐसा क्रिएट करे। ओके, Okay, ma'am. Okay. या कुलदीप, आर यू देयर? यस मैम। कुलदीप, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है। देखो, आप सबके पॉइंट सुन रहे थे, तभी आप एग्री या डिसएग्री कर रहे थे, ठीक है। आप ऐड भी कर रहे थे, आप लिंक भी कर रहे थे अपने आइडियाज को, लेकिन आपने सुना कि अविरल ने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया था, यस मैम, सुना था। ठीक है, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर जब आपने बोला कि मैम मैं भी कंक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप उसको ऐड कर सकते थे पॉइंट को, कि मैम आई वुड लाइक टू, ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्टेड है ये जो आपने जैसे स्टार्ट किया, बट स्टिल थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं, अगर वो चीज बोल रहे हैं तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको मैम। कोलैबोरेट करें। ऑलराइट कुलदीप, आपने बोला यस मैम। कि वुमेन शुड बी एजुकेटेड लाइक दैट, कि फैमिली को पहले समझना जरूरी है। बाहर से तो ठीक है, हम रूल्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं, ऑल दैट, बट फैमिली अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ना। यस ठीक बोला आपने, अच्छा बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बात को जब प्रूव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लास्ट में थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल और स्ट्रांग हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम कोई बाउंड थोड़ी अपने आइडियाज के साथ, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट वी कैन थिंक ओवर, लाइक थिंक बियॉन्ड, ठीक है। तो हम थोड़े और बेटर पॉइंट कर सकते हैं, मतलब इम्प्रूव हो सकता है और भी। ऑलराइट, ओके। बाकी आपने पार्टिसिपेट अच्छा किया, लाइक यू हैव पार्टिसिपेटेड लॉट ऑफ टाइम, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं खोई, दैट इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, ओके। या पार्थ, Yes, ma'am. या पार्थ, गुड पॉइंट्स, आई रियली अप्रिशिएट, लाइक बहुत ही मतलब प्रॉपर और क्लियर थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत कंफ्यूजिंग था, और बड़े डिफरेंट भी थे। आपने फीमेल पिटीसाइड को भी इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी के लिए होती है बेसिकली, कि हाँ कोई भी फीमेल सोचती है कि मुझे इतनी दूर ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो
हाउ आई हैव टू मैनेज लाइक दैट। ठीक है, वो आपने ठीक है। आपने एक और पॉइंट बोला कि कुछ जो फीमेल हैं, कुछ विमेन जो हैं, इसका मतलब नेगेटिव कंसिक्वेंस है ये कि वो फायदा उठाती हैं, राइट? सो कि वो फॉल्स ब्लेम लगाती हैं एंड ऑल दैट, दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। बट एक थोड़ा सा हमें टॉपिक को देखना है, तो हमें अगर हम वो पॉइंट रख भी रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसको प्रॉपरली फिर एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा टॉपिक है कि हम उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो Okay. कोशिश करनी है कि जो टॉपिक है उसको थोड़ा प्रॉपरली जस्टिफाई। अदरवाइज आपके पॉइंट्स अच्छे थे, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करी, आपने पार्टिसिपेट अच्छा किया, डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, डिफरेंट पॉइंट्स दिए, दैट इज गुड। थोड़े से और हम ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द वन। ऑल राइट, Aviril, are you there? Yes, ma'am. Aviril, you said that gender gap, it's a good point कि जेंडर गैप की वजह से वेजेस गैप भी होता है, मतलब लेकिन ये जेंडर गैप नहीं है, जेंडर डिफरेंशिएशन है बेसिकली, कि मेल है या फीमेल है। अगर वो जॉब शेयर कर रहे हैं, जॉब शेयर इज समथिंग कि एक मैं हूं और एक मेरा कलीग है, हम दोनों एक पोस्ट पे हैं, बट स्टिल मेरी वेजेस लेस है, उनकी ज्यादा है। दैट यू वांट टू से, राइट? Yes, ma'am. Good. ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बेसिकली वो। ठीक है, एट द वर्क प्लेस आप उसको थोड़ा एनहांस भी कर सकते हो कि जॉब शेयरिंग में कैसे होता है लाइक दैट, और जो टर्म है वो थोड़ी परफेक्ट यूज कर सकते हो। नॉट इज अ जेंडर गैप नहीं है वो, है ना, इट्स नॉट अ एज गैप और लाइक दैट, इट्स अ जेंडर डिफरेंशिएट वेरिएशन कह सकते हो आप, है ना। आपने बोला लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लीगल रिफॉर्म्स आर देयर Yes, और ma'am. हम उनको एनहांस भी कर सकते हैं, बट फैमिली सपोर्ट इज देयर, यू आर एग्रीइंग विद समवन एल्स। ठीक है, दैट इज गुड थिंग। Yes. मैट आपने बोला कि क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ऑल राइट, तो आप Through उसमें थोड़ा social और media. Yes. ऐड भी कर सकते थे कि कैंपेनिंग हो सकती है, रूरल एरियाज में भी हो सकती है, अर्बन में भी हो सकती है, मैम कॉलेजेस में। उसमें सोशल मीडिया वाला पॉइंट बोला था मैम उसमें। हाँ, सोशल मीडिया वाला बोला था कि सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सोशल हाँ. मीडिया के थ्रू सिर्फ आप कैसे, आप मेरे को पता, आपने बोला मैम सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि आजकल लोग सोशल मीडिया ही ज्यादा यूज करते हैं, बट एक चीज आपने बीच में बोली थी कि मैम फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले वो जो फैमिली. अवेयरनेस है वो फैमिली में होनी चाहिए। बाहर हम इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लाइक दैट, और हम खुद की फैमिली में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या हम खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट वॉन्ट बी वर्क। ऑल राइट, ठीक है। ओके. अरविंद, आर यू देयर? यस मैम। ओके, अरविंद आपके पॉइंट्स काफी बेसिक थे बट अच्छे थे। ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो भी आपने फील किया, आपने वो बोला, बट थोड़ा चॉइस ऑफ वर्ड बेटर हो सकती है, अपने पॉइंट को आप थोड़ा ज्यादा प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कि यस फाइनेंशियली अगर विमेन इंडिपेंडेंट है तो वो हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपने यस बोला कि यस रूरल एरिया में भी कुछ मतलब उनको गर्ल्स को बाहर पढ़ने नहीं देने जाते हैं ना, तो ऐसा यस कुछ होना चाहिए, राइट? यस अरविंद, आपको अपने पॉइंट्स को थोड़ा ना क्वालिटिव और बनाना है, क्वालिटेटिव बनाना है बेसिकली, मतलब थोड़ा यस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने हैं आपको। ये बहुत यस बेसिक और थोड़े लेमैन पॉइंट्स हैं, तो हमें थोड़ा, क्योंकि हम सब लोगों के बीच में बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, सो वी हैव टू गिव पॉइंट्स लाइक दैट। ठीक है यस अरविंद? मैम। यस या थोड़ा सा आप इस पे स्टडी करना कि हाँ हम इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस है वुमेन के लिए। जैसे अविरल ने भी बोला था कि हमारा वर्क प्लेस पे हमारी वेजेस में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कई बार यस पोस्ट वाइज भी हो जाता है कि वुमेन को जो यस है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए काफी इतना मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मेन। मेन को मतलब या मेल को जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उसको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। ठीक है, सो ये चीजें थोड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं ये चीज अभी भी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो प्रॉपरली खत्म हो चुकी है, तो इन पॉइंट्स को हमने थोड़ा सा लाइक जो टेक्निकल थोड़ी चीजें उनको भी हमें ग्रैब करना है। ऑल राइट अरविंद? यस मैम। या कोमल, आर यू देयर? यस मैम। ओके कोमल, आपने काफी जो डीप पॉइंट्स थे वो रेज किए हैं बेसिकली, अच्छे थे कि मतलब वुमेन भी ऑफिस जाती है ऐसा कुछ है, स्टिल वो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ वाले ही एग्जाम्पल हैं, दैट्स गुड। ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, राइट? मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि है ना क्वेश्चन राइज करें, हम कुछ हम अपना पॉइंट रख रहे हैं तो हम उनको थोड़ा बेटर वे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैम ऐसा होना चाहिए, एवरीवन शुड हेल्प, सो नोबडी लाइक एवरीवन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द विमेन ओनली कि हाँ वही सब कुछ करेगी लाइक दैट। तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉट ओनली हमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव में ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इवन इट लुक्स मोर बेटर। ऑल राइट कोमल?
Kamal, are you there? I couldn't hear you if you are here. Yes, ma'am. Yeah. ओके कॉमल, अपने 2 पॉइंट और अच्छे दिए कि रूरल एरियाज में लाइब्रेरी होनी चाहिए क्योंकि गर्ल्स को बाहर अलाउड नहीं है पढ़ने जाना, है ना? दैट इज अ गुड पॉइंट कि आप रूरल एरियाज में लाइब्रेरी के लिए आप गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। दैट इज अ गुड पॉइंट। नंबर 3 आपने बोला कि सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, रेप केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? तो आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते थे कि रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके क्या रीजंस हैं, लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट तक एक ही पॉइंट पे ऐसा बोलो, पर आप उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते थे कि हाँ रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं उनपे, क्योंकि कोई सच प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। कुछ आपने बोला भी कि मैम जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो गर्ल को ही क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा तो होता रहता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में करो। सॉरी, आई थिंक योर नेटवर्क इज नॉट स्टेबल कॉमल, दैट्स व्हाई लाइक यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। मैम सही है, नेटवर्क ठीक है मैम। या नाउ इट्स फाइन। या हाँ सो मैम, मैं बोल रही थी मैम हम्म। पुलिस स्टेशन में तो अक्सर लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं अक्सर लड़की के साथ मैंने कुछ ऐसा स्टोरी सुना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बोला। नहीं, इट हैपेंस कि हमें ही क्वेश्चन किया जाता है एट द एंड कि ऐसा तो होता रहता है या फिर ऐसा क्यों है, इट्स नॉट अ बिग डील और लाइक दैट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यू रेज गुड पॉइंट। आप और भी पॉइंटर्स दे सकते थे क्योंकि आपके पॉइंट स्ट्रांग थे। आप थोड़ा सा और भी अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते थे टू गेट इन पार्टिसिपेशन, ठीक है? सो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। गाइज आप इकोनॉमिकली आप बोल सकते हो कि विमेन शुड बी दैट इक्वल टू द मेन और इक्वल टू द मेल कैंडिडेट्स। लाइक जो वेजेस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं अगर हम जॉब शेयरिंग में है तो हमें अलग अलग वो हमारा सब कुछ क्राइटेरिया अलग है, हमारे रूल्स अलग हैं, वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। कुछ एजुकेशनल डिस्पैरिटीज अभी भी हैं। उनके रीजंस कुछ हैं कि पोवर्टी है वहां पे, कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं जैसे एजुकेशनल। दिस इज 21st सेंचुरी। स्टिल जो लोग अर्बन एरिया में रह रही हैं, वहां जो गर्ल्स रहती हैं वो दैट इज ओके, दे आर स्टडिंग, दे आर वेल अर्निंग और लाइक दैट। बट अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे पोवर्टी है, उसकी वजह से एजुकेशनल डिस्पैरिटी है, जहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उसको स्टिल आगे बढ़ाया जाता है, इनकरेज किया जाता है टू स्टडी, बट गर्ल्स को नहीं किया जाता, ठीक है? वो यस चीज आप बोल सकते हो। वायलेंस बोल सकते हो, वायलेंस अगेंस्ट अगेंस्ट वुमेन ये काफी ज्यादा अभी भी हो रही है। वो चीज ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पॉलिसीज फ्रेमवर्क को बाहर देखते हैं, उसको सिर्फ माइंड में लेके आते, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। स्पेसिफिकली ये चीज हमारे घरों में ही होती है, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अ होम ओनली, ठीक है? तो यस सबसे पहले स्टेप हमें लेना है, दैट्स आफ्टर दैट वी कैन चेंज द सोसाइटी एंड ऑल दैट। ऑल राइट, सो सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी जो है चेंज करनी है, ठीक है? ऑल्सो ओके। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए फॉर द जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं वुमेन के लिए, क्योंकि सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क करने से कुछ नहीं होगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये सारी टर्म्स यूज कर सकते हो। ऑल्सो अविरल, यू हैव कंक्लूडेड अ टॉपिक, राइट? Yes, ma'am. अविरल, आपने जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स कंक्लूड कर दिया कि ऐसे ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे, और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको फाइनेंशियली होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए एंड ऑल दैट। आप उसको स्टार्ट ऐसे करोगे कि सबके बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनिशिएट कंक्लूड द टॉपिक। सो आप इवन पॉइंटर्स भी ले सकते हो कि हाँ इसने ये बोला, कुलदीप हैज सेड लाइक दैट, साहिल हैज डिस्कस लाइक दैट। सो वो चीजें आप थोड़ा सा मतलब मिक्स कर सकते हो कि हाँ इन्होंने पॉइंट्स दिए, दैट आर रियली गुड पॉइंट्स। सो फिर आप अपना भी ऐड कर सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक हम कुछ जेनरिक व्यू देंगे कंक्लूजन में, जो सब लोग उससे एग्री भी करें कि हाँ वो सही कह रहा है, जो हमने व्यू बोले थे वो ठीक बोल रहा है वो, ठीक है? सो दैट इज द Okay. थिंग, एंड एट द एंड यू हैव टू से थैंक यू। तो वो हाउस डिस्कशन के लिए बंद हो जाता है और वो कंक्लूड हो जाता है टॉपिक प्रॉपरली। सो गाइज थोड़ा सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है, आप थोड़ी सी टर्म्स प्रॉपरली यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा लेमन एग्जांपल्स भी नहीं देने हैं और बहुत ज्यादा ओवर मेमोराइज्ड कंटेंट भी नहीं देना है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा जनरल है तो हमें थोड़ा जर्नल होके ही सोचना है, और रेदर कि हम हमेशा आर्गुमेंट में ही रखें या नेगेटिव वे में रखें, हम पॉइंट्स को जो है डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी दे सकते हैं। ऑल राइट,
All right, guys? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Any Yes, yes, ma'am. question, any query regarding this topic or like that? मैम मेरे को पूछना है। मैं ये कह रही हूँ ना, अभी आप बोले ना कि हम्म, किसी के पॉइंट को लेके बोलना कि हाँ मैं आपसे एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, या उस पॉइंट को लेके उसके बाद आगे अपना पॉइंट बोलना है एक्चुअली में मैम। हाँ बट ना मेरे को सुनने में दिक्कत है, ठीक है मैम। और ना मैं Okay, वही तो okay, no यहाँ worries. पे। हेलो, हम्म, हाँ मेरी आवाज आ रही है? yes, yes, Komal, yes, Komal. हाँ यस मैम। तो ना एक्चुअली में मोबाइल में तो मैं कैप्शन देख के समझ पा रही हूँ ना, और मैं फोन को अपना कान के सामने रख के सुन रही हूँ, ठीक है। तो वही Okay. कह रहे हैं कि जब सामने में मतलब कि जो सामने में जेडी होगा, जो ऑफलाइन होगी, तो उस टाइम ना मैं तो प्रॉपर सुन तो नहीं पाऊंगी। तो अगर हम डायरेक्ट पॉइंट बोल देते हैं तो क्या मैम मुझे मतलब नंबर मिलेंगे या नहीं, मतलब आप क्या बोलना हाँ, चाहते हैं? ओके कोमल, ऐसा नहीं है। देखो, वो आपकी फिजिकल वो कुछ भी है, ठीक है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो ना कि मैम माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट, और मैम आई वुड लाइक टू से समथिंग, है ना। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई लाइक दैट इज गुड, नो वरीज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी कुछ चीजें अनफोर्सिंग होती है ना, सो नो वरीज। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। ऑल राइट, बट आपके पॉइंटर्स अच्छे थे, बट आप उसको थोड़ा और इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक ओके है। मैम। यस या मैम। या So, all right, guys, then I'll meet you in the next session. Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, Okay, ma'am. Thank you. okay.